Good evening, dear students. How are you all? I hope you are fine. So, before going to start today's chapter, I have a quote for you. When it rains so heavily, most of the bird headed for shelter. The eagle is the only bird that, in order to avoid the rain, he fly above the clouds. So, this is how we should behave, we should respond to the stimulus. So, as a student, we have to also respond for a stimulus in a very different way that other are not doing. Your preparation should be like that you should always ahead from others. So, for that, I am always telling you that start preparation from the beginning. So today we will talk about a very interesting chapter of class ninth, that is chapter number 10, gravitation. And CBSE has reduced the little bit part of this gravitation chapter. We have to only study this chapter up to mass and weight. The buoyancy concept, Archimedes principle, that is deleted from the syllabus. So it is very simple and very interesting chapter. And all of you must agree with me that most of the discoveries happen accidentally. When we talk about the discovery of penicillin antibiotic, it was also happened accidentally. Then when we talk about this very interesting phenomena, gravitation, it has been also this has also happened accidentally. So according to the legend, it is believed that the Newton the Newton was sitting under the apple tree, or he has just observed a falling apple. So when he observed the falling apple, that struck into his mind that why this apple is falling directly downwards toward the earth, why it is not going to sideways, why it is not going to upward direction. तो न्यूटन के मन में एक सवाल आया. न्यूटन ने एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा तो उसने पाया कि भाई ये जो सेब है ये बिल्कुल सीधा ही क्यों आ रहा है. तो उसके मन में एक सिंपल सी चीज़ डिस्कवर हो गई और उसी की बात हम करते हैं ग्रेविटेशन की. किसकी बात करते हैं बेटा? ग्रेविटेशन की. ये मैंने एक किताब से छोटा सा आपके लिए एक माइंड मैप लिया है. रचना सागर बुक है, बहुत अच्छी किताब है. उसमें से एक छोटा सा माइंड मैप लिया है. ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स है. और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैंने सिर्फ लेने के लिए आपको ये दिखाया है स्लाइड. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी विल टॉक अबाउट. In universal law of gravitation we will talk about gravitational constant, then we will talk about relation between capital G and small g. फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे, मास और वेट और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों. ठीक है जी. तो एक दो चीज़ें हमने यहाँ पे याद रखनी है. Okay. When we come to this chapter, that is gravitation, so we observe then when a body is dropped from a certain height, it falls toward the earth. Why it falls toward the earth? That is due to gravitation. All the planets move around the sun in a circular orbit. Moon revolve around the earth in a circular orbit. Newton called all these forces as gravitational force. So Newton was sitting under an apple tree when the apple fell on him. So I have already explained it to you how he has discovered that gravitational force. So every object in the universe attract every other object. Attract every other object. This force of attraction is called gravitational force. So gravitation is simply called as the phenomenon of attraction between any two objects in the universe. The object may be terrestrial, it means they may be on the earth, or they may be celestial or heavenly body, we say they are in outer space.
and they can be of any size. This must be noted down that gravitation is always the force of attraction. It is never repulsive force. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है ये हमने याद रखना है. Then a very important question that we will talk about here, universal law of gravitation. ये बहुत बार ये चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है. What is universal law of gravitation? So every object in the universe attract every other object. Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force is always lies along the line joining the center of two objects. You can simply learn this with the help of this diagram. For example, there are two objects. They are having a mass m, capital M and small m. उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है. तो हमने क्या कहा कि इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी वो बराबर है एम एम के. किसके बराबर है बेटा? एम एम के. यस, वेरी गुड. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिखाई दे रही है. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम. और मान लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट A और B जिनके मासेस कैपिटल M और स्मॉल m है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है. डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है. और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है. तो जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो हमने कहा m इंटू m. दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बड़े ध्यान से हमें समझना है. प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल है. और अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन उससे दूसरी क्वांटिटी घट रही है, इसका मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा. और जितने वो दूर होते जाएंगे, right now I am sitting here, my mobile phone is there, we are also attracting each other with a force. एक क्वेश्चन और हमारे मन में आया था कि भाई जो सेब था वो तो धरती पे आके गिरा, तो हम कह रहे हैं कि भाई सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो सेब था उसने धरती को क्यों नहीं अपनी तरफ खींचा? तो आप कहेंगे नहीं भाई, दोनों ने फोर्स लगाई, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं. बट एज कंपेयर टू अर्थ द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल. बहुत ही कम है. ऐसा ही उदाहरण आ सकता है कि भाई धरती और चांद के बीच की बात कर सकते हैं हम, अर्थ एंड मून के बीच में. बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद ए फोर्स दैट इज इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. तीसरा लॉ कहता है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेकिन मास, अगर मैं चांद की बात करूं, मून की बात करूं, तो उसका मास बहुत ही कम है. किसके कंपैरिजन में? अर्थ के. तो इसलिए वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा है. तो ये चीज़ें भी हमने याद रखनी है. अब हमारे पास आगे क्या बात आई कि भाई दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इस मीन 1/d स्क्वायर. और इसको कंबाइन कर दें दोनों इक्वेशंस को, 1 और 2 को, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान mm/d स्क्वायर. और इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैपिटल G. तो हमने याद रखना है कि जो कैपिटल G है दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये क्या है जी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो अगर आपने इस G की वैल्यू निकालनी हो तो ये कैसे निकल सकती है? देखिए, G हो सकता है, G अगर यहाँ पे रहने दें, F/d²/mm. अब आपको पूछा जाए कि भाई इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी, तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. आप कहेंगे हाँ जी न्यूटन, बहुत बढ़िया. और डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर. तो मीटर का स्क्वायर कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया. और एक मास की किलोग्राम, दूसरे मास की किलोग्राम, तो किलोग्राम का भी स्क्वायर हो गया. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ दिस G एंड इट्स वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और अगर किसी बॉडी का मास, अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 1 kg, उनके बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, तो ये G जो है किसके बराबर हो जाएगा? F के. एंड वाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट? तो ये आपको जान के हैरानी होगी, द वैल्यू ऑफ G, जो G की वैल्यू है
that does not depend upon masses of the two bodies, distance between them, nature of the medium, size of the bodies, celestial or terrestrial. That is why it is called universal constant. कहीं पे भी चले जाएंगे इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट. क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट. तो ये आपने याद रखना है. तो ये तो हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो क्या कहा भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने? कोई आपसे पूछ ही ले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या कहा. सो क्या बोला हमने? सिंपल सा, इट स्टेट. क्या स्टेट कर रहा है ये भाई? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बन गया, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो ये भी हमें याद रखनी है कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ is responsible for binding all the terrestrial body on the earth. We are able to walk on this planet earth. Why? Due to this gravitational force. It is responsible for holding the atmosphere around the earth. हम कहते हैं भी अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर एटमोसफेयर है. जिस ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे थे शुरू में, मैंने बात की आपसे बाज की कि भाई बाज जो है बारिश से बचने के लिए बादलों से ऊपर चला जाता है. तो बादलों का जो फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, पहली लेयर जो है एटमोसफेयर की. और वहाँ तक जो फिनोमेना हो रहा है उसको भी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को बाइंड करके रखता है. इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट रहता है. अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ही ना हो तो एटमॉस्फेयर ही उड़ जाए, ऊपर चला जाए. याद रखना है आपने. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल. आजकल हम बात कर रहे हैं हिल स्टेशंस पे लॉट ऑफ रेनफॉल एज वेल स्नोफॉल इज गोइंग ऑन. सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्नोफॉल. इट एड ब्यूटी टू द नेचर. द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर. The water is flowing in the river from the highest mountain to the plains. Is it happen that from water goes from plain to the Himalayas again? No, it is not possible. So why? This gravitational force is there. It is helping the water to flow in the river. All the planet revolve around the sun. Formation of tides in the sea and oceans. That is also due to this gravitational force. तो आपको पता लग गया कि क्या इसके फ़ायदे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के. छोटा सा एक पॉइंट आपकी किताब में दिया हुआ है मोर टू नो में, कैपिलर लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. इसके 3 लॉ हैं. थोड़ा सा हम इसको हल्का सा लेंगे, बाकी हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. एवरी प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट with the sun situated at any one of the foci of the eclipse. आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 F2 दिखाई दे रहा है. ये F1 और F2 जो है फोकाई हैं. यहाँ पे सन कहीं पे भी लोकेट हो सकता है. सेकेंड लॉ क्या कहता है? इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एरिया OP1 OP2 इज इक्वल टू एरिया OP3 OP4. ये आपने याद रखना है. थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit. So F is inversely proportional to R square. ये हमने थोड़ी सी चीजें याद रखनी है. अब एक और क्वेश्चन आता है, फ्री फॉल. तो गैलीलियो ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया, फ्री फॉल के ऊपर. और एक सिंपल सी भाषा में अगर हम फ्री फॉल की बात करें, ऑल द ऑब्जेक्ट which are falling toward the earth under the action of gravitational force. ये मेरे पास एक पेंसिल है, मैं इसको यहाँ से गिराता हूँ, ये नीचे को गिर रही है और इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. हालांकि इस पर हवा की फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है, पर मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए, तो ऑल द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन आर सेड टू बी इन फ्री फॉल. द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इन फ्री फॉल. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity as the acceleration produced in the body in the free fall due to gravitational force of earth, and it is denoted with the letter small g, and it does not depend upon the masses of the object. So there is another very important question, what is the relation between small g and capital G? So F is equal to G mm upon R square हमें पता था. न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहा गया था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन. तो यहाँ पे एसेलरेशन जो है वो क्या बन गई है बेटा?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपको सबको याद है, बहुत पुराना मोशन का भी मेरा देखा होगा आपने वीडियो। तो एक्सेलरेशन में मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो गया। एफ के बदले मैंने यहाँ पे भर दिया, देख लीजिए आपके सामने एम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू यहाँ से आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 के जी। रेडियस अर्थ की है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब क्या होगा, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू पुट कर दी, मास पुट कर दिया, रेडियस का स्क्वायर कर दिया। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल इसकी यूनिट वही है जो एक्सेलरेशन की है। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप पढ़ के आए हैं एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। तो मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू कैसे बदलती है। तो पोल पे याद रखना है आपने, क्योंकि हम एलिप्टिकल बात कर रहे थे अर्थ की। तो पोल पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब हम इक्वेटर पे आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर हम ज़मीन के नीचे चले जाएंगे सेंटर ऑफ द अर्थ तो ये घटती जाएगी और बीच में जाके क्या हो जाएगी, शून्य, जीरो। क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। समझ आ रही बात कि नहीं। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाएंगे तो ये भी बदलती जाएगी, और सेंटर ऑफ अर्थ पे मैंने बता ही दिया आपको, जीरो है। एक क्वेश्चन भी था आपकी किताब में, मैंने कहा था आपको कि भाई एक अमित नाम का बच्चा है, वो क्या करता है, जैसे मैंने ये गोल्ड की अंगूठी पहनी है आपको दिखाई दे रही है, वो पोल पे सोना खरीदता है। वो कहता है जी मैंने 5 ग्राम सोना खरीदा पोल पे, और वो इक्वेटर पे आके अपने दोस्त सुमित को देता है। अमित ने 5 ग्राम सोना खरीदा पोल पे और सुमित को दिया। अब सुमित तो बहुत चालाक था, सुमित भी साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा भाई मैं तो वे करके लूँगा। तो जब उसने वे किया तो वो जो सोना था वो थोड़ा सा कम पाया गया, थोड़ा सा कम फ्रैक्शंस में। अगर फ्रैक्शनल वेट लेंगे तब पता लगता है, पता ही आपको सोने का तोलते हैं तो। सो व्हाई डज इट हैपन, क्योंकि मास जो वेट की बात कर रहे थे हम एम कहते हैं, एम मास तो सेम रहा लेकिन जी की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा थी, तो वहाँ थोड़ा सा हल्का सा भारी हो गया वो सोना, और यहाँ पे आके वो सोना थोड़ा सा हल्का हो गया। तो ये आपने साइंस के स्टूडेंट को समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। क्या अमित झूठ बोल रहा था सुमित से? नहीं, लेकिन ये साइंस थी इसके पीछे। क्या थी? साइंस। तो आपने इन सारी चीज़ों को भी समझना है प्यारे बच्चों, क्योंकि साइंस को हमने डेली लाइफ में भी लाना है, डे टू डे लाइफ में लाना है आपने। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं बहुत सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमने पढ़ा v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो जो भी हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, इसको हम बदल देंगे। यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे a है वहाँ पे जी टी लग जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा जब हम आगे बात करेंगे। v इजिकल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, जो s था वो हाइट बन जाएगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2gh। तो एक और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह गया था उसको भी थोड़ा सा ले लेंगे हम, मास और वेट को। The mass of a body is defined as the quantity of matter contained in the body. It is represented by letter M. SI यूनिट इसकी किलोग्राम है। As the quantity of matter in the body is constant. क्या quantity of matter? Matter हमने पढ़ा, anything which occupies space is called as matter. तो मैटर क्या बदल सकता है? जितनी जगह हम यहाँ पे घेर रहे हैं उतनी चांद पे घेरेंगे कि नहीं, उतनी किसी दूसरी जगह पे घेरेंगे, होगा ऐसा कि नहीं? यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल सहमत, सही कह रहे हैं, होगा। तो होगा तो इसका मतलब मास जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं होगा। इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट, द वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक ऐसी फोर्स है जिसके द्वारा कोई बॉडी अर्थ पे खींची जा रही है, so it is represented by W, and force क्या है, mass into acceleration ma, और यहाँ पे वर्क जो फोर्स है वो W इक्वल टू mg। तो जो वेट है उसकी SI यूनिट बच्चों सेम है जो फोर्स की है। क्या थी फोर्स की? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूटन। यस, न्यूटन। सो विच इज SI यूनिट ऑफ फोर्स?
एक चीज़ और यहाँ पे हम कहेंगे कि जो फोर्स है, ये जो वेट है, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पता होगा कि भाई मैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनको सिर्फ नापा जा सकता है, उनकी डायरेक्शन नहीं पता होती कोई भी कि भाई कौन सी डायरेक्शन है। जबकि वेट की डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं हम कि भाई डायरेक्शन है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लग रही है ये फोर्स, तो इसलिए वेट को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज जीरो, जहां जी जीरो था वहां पे वेट क्या होगा, वेटलेस हो जाएगा व्यक्ति, जीरो। इंटरप्लेनेटरी स्पेस, स्पेसशिप में आपने देखा होगा, सुनीता विलियम्स वगैरह की वीडियो देखते हैं हम, और भी बातें देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स की, वहां पे भी जी जीरो होगा तो वेट जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। एक और क्वेश्चन था कि भाई जो हमारा वेट है यहाँ पे कितना होगा और चांद पे कितना हो जाएगा, तो वो कितना रह जाता है आपको पता होना चाहिए, 1/6। क्या रह जाता है, 1/6, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ पे चांद पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसलिए जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो अगर हमारा भार यहाँ पे 60 किलो है तो वहाँ पे कितना रह जाएगा, कितना रहेगा आप सोचिए ज़रा, अपने मन में कैलकुलेट करिए ज़रा कि अगर यहाँ पे आप 60 किलो के हैं तो वहाँ पे कितने किलो के रह जाएंगे, 10 किलो। कितने केजी के रह जाएंगे, 10 केजी। तो इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और शुरुआत से तैयारी करिए, अपने लेवल पे नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और थोड़ा सा पढ़ना है इस चैप्टर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी कोशिश की आपको काफ़ी चीज़ें बताने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।